नेक्स्ट टॉपिक इज द ब्लड प्रेशर एंड द रेट ऑफ ब्लड फ्लो। ब्लड प्रेशर क्या होता है? इट इज़ द फोर्स exerted on the walls of blood vessels। blood vessels की walls पे जो force exert करता है blood, ठीक है, blood itself while flowing through the blood vessels, when it exerts pressure on the wall of the blood vessels, that is known as the blood pressure। It is the measure of force with which blood pushes up against the walls of blood vessels and the force that keeps the blood flowing from heart to the capillary network in the body। अच्छा, इसमें जो है बहुत सारी फैक्टर्स आ जाते हैं। द प्रेशर जनरेटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकुलर सिस्टोल की वजह से जनरेट करेगा, और एओर्टा में हाईएस्ट होता है क्योंकि वेंट्रिकुलर सिस्टोल्स यानी के बाद ब्लड जो है डायरेक्टली एओर्टा में जाता है, और उसके बाद जो है वो पल्मोनरी आर्टरीज, उसके बाद जो है वेन्स वगैरह, मतलब ऑब्वियसली आर्टरीज एंड देन वेन्स। The pressure is generated by the contraction of ventricles and highest in aorta, then gradually reduces in arteries. The walls of arteries are elastic and the flow of blood stretches them and it is felt as a pulse। तो जो आपको जो है वो पल्स फील हो रही होती है इन योर वेन्स और आर्टरीज, दैट इज़ बेसिकली रेट होता है, रेट ऑफ द हार्ट बीट। और इस ब्लड प्रेशर को हम जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, एंड वी रिकॉर्ड इट इन द यूनिट ऑफ मिलीमीटर मर्करी, या इसको हम टॉर भी कहते हैं। और जो हम इसके लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं दैट इज़ स्फिग्मोमैनोमीटर। ये इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यूज़ करके ब्लड प्रेशर जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। Several other changes occur along the route of blood flow। कौन कौन सी changes है? First is the difference between systolic and diastolic pressure continue to diminish until it disappears in the blood and veins। Second is the rate of blood flow tends to fall as the blood moves around the branching arteries and arterioles। Definitely जैसे जैसे blood flow जो है वो aorta से branching arteries में और उसके बाद arterioles में आएगा, blood pressure में downfall आता चला जाएगा। The rate is lowest in the capillaries। capillaries में lowest इसलिए होता है क्योंकि arterioles जो है वो capillaries में जाके they are the limit। capillaries are the limit क्योंकि वो functional unit होते हैं। उसके बाद again they join to form venules and veins, and increases again in the venules and veins obviously। And the changes in the rate of blood flow result from changes in the total cross sectional area of the vessel system। cross sectional area जो है ये capacity है या bore capacity होती है basically blood vessels की। जितनी ज़्यादा bore capacity होती है, blood pressure जो है वो उतना कम हो जाता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा बोर कैपेसिटी होगी ब्लड उसमें से इजीली फ्लो करेगा, तो जो इलास्टिसिटी होती है वो कम हो जाती है, या जो रेजिस्टेंस होती है वो कम हो जाती है। इसके बाद जो है वो कुछ डिजीज़ेस जो हैं बेसिकली वो डिस्कस किए हुए हैं यहाँ पे, उसको भी वन बाय वन देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ द हाइपरटेंशन। Hypertension, hyper means increased, tension is that tension is the blood pressure। अगर increased blood pressure हो जाएगा, high blood pressure होगा, उसको हम hypertension कहते हैं। and the prolonged high blood pressure damages। अच्छा, जो hypertension है इसकी लिमिट होती है कि नॉर्मल आपका होता है 120/80, लेकिन अगर इन द केस ऑफ hypertension 140 एक्सीड कर जाता है तो फिर हम कहते हैं, और ये persistently होता है, this word is very important, persistently increase blood pressure that is 140 or greater than 140, तो हम उसे कहते हैं कि the patient is suffering from the hypertension। and with the passage of time, जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है, जो कि इलास्टिसिटी कम होती है वेसल्स की, तो हाइपरटेंशन जो है वो देखने में ज़्यादा आती है। उसके बाद थ्रोम्बस फॉर्मेशन एंड हाइपरटेंशन। थ्रोम्बस फॉर्मेशन हाइपरटेंशन क्या होता है? थ्रोम्बस is a solid mass of plug of blood constituents in the blood vessel and this may block। अगर ब्लड क्लॉट बन जाता है ब्लड वेसल्स में और वो जो है वो रास्ता ब्लॉक कर रहा है ब्लड फ्लो का, दैट इज़ नोन एज थ्रोम्बस। और थ्रोम्बस के साथ दूसरी टर्म जो है एम्बोलस होता है। अगर यही ब्लड क्लॉट जो है वो मूवमेंट शो कर देता है इन द ब्लड वेसल्स, देन इट इज़ नोन एज एम्बोलस। और एम्बोलस जो है वो ज़्यादा डेंजरस होता है इन अ सेंस कि अगर वो कहीं ब्रेन तक चला गया और ब्रेन में जो है वो ब्लॉकेज हो रही है ब्लड फ्लो की, तो ऑब्वियसली द पर्सन जो है उसकी डेथ हो सकती है।
थ्रॉम्बस क्यों हो सकता है? बिकॉज इरिटेशन और इन्फेक्शन और लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। सेकेंड, मतलब पहला ये इन्फेक्शन हो सकता है, कोई बैक्टीरियल हिंड्रेंस आ सकती है, और वैसे इरिटेशन हो सकती है किसी और पार्टिकल की कोगुलेशन की वजह से। रिड्यूस रेट ऑफ ब्लड फ्लो का रिड्यूस रेट तब होता है जब कोई एक्टिविटी नहीं हो रही होती, नहीं कि बिस्तर पे लेटे रहना, कोई एक्सर्शन वाला काम ना करना। थर्ड इज द निमोनिया एंड ट्यूबरक्लोसिस, एम्फीसीमा एक्सेट्रा। ये डिजीजेज हैं जो कि फर्दर आगे इस किस्म की कंडीशंस को जो है वो राइज अप करते हैं। निमोनिया है, उसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हो रहा है। उसके बाद एम्फीसीमा बताया था, दिस इज अ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो ये कंडीशंस हैं। थर्ड हमारे पास जो डिजीज है दैट इज हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं इसको। हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ब्लॉकेज ऑफ ब्लड विद इन द हार्ट बाय एन एम्बोलस। इट कॉजेज नेक्रोसिस और डैमेज टू द पोर्शन ऑफ हार्ट। नेक्रोसिस जो है वो सेल डेथ होती है, सेल्स की डेथ होना शुरू हो जाती है, उसे हम नेक्रोसिस कहते हैं। कंडीशन नोन एज हार्ट अटैक और टेक्निकली मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। और इसकी जो है इसकी कुछ प्रिकॉशंस दिए हुए हैं कि ज़्यादा फैटी फूड, कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो है उसको इसकी इनटेक ना करें, ब्लड प्रेशर को रेगुलर वॉक और एक्सरसाइज से कंट्रोल किया जाए, और स्मोकिंग जो है उसको बिल्कुल ही ज़िंदगी से निकाल दिया जाए। Fourth disease is, the condition basically is the stroke. Stroke क्या है? Normal flow of the blood is blocked by embolus. Locally formed thrombus in blood vessel in the brain causes necrosis or death. Basically it is the brain death. अगर brain की death हो जाएगी तो उसे हम जो है वो stroke कहते हैं। And इसे हम cerebral infarction भी कहते हैं। Cerebral क्योंकि सेरिब्रम इज द मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन, तो इसको हम सेरिब्रल इन्फार्क्शन कहते हैं। लास्ट डिजीज इज द हेमरेज। हेमरेज जो है इट इज अ डिस्चार्ज ऑफ ब्लड फ्रॉम ब्लड वेसल्स। अगर ब्लड वेसल्स, इन शॉर्ट हेमरेज क्या होता है? ब्लड वेसल्स का फट जाना, ब्लड वेसल्स का जो है वो लीक करना शुरू हो जाना। अगर उसमें से ब्लड वेसल्स में से ब्लड निकल जाएगा तो दैट विल रिलीज इन हेमरेज। और हेमरेज जो है अगर किसी वाइटल ऑर्गन का है, लाइक लिवर है या ब्रेन है, तो ऑब्वियसली इट कैन प्रूव फैटल। इसमें आप अवॉइड क्या कर, मतलब इसकी प्रिकॉशंस क्या है, इन डिजीज़ को अवॉइड कैसे कर सकते हैं? टेकिंग लेस कोलेस्ट्रॉल, कम से कम कोलेस्ट्रॉल लें, और ओवरवेट जो है वो होने से बचें, एक्सरसाइज जो कि वेट कंट्रोल हो। स्मोकिंग जो है दैट शुड बी स्टॉप्ड, अगर करें या इट शुडंट बी, इसको इनिशिएट ही नहीं करना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज इज़ असेंशियल, और स्ट्रेस और टेंशन को जो है वो अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज उससे भी जो है ब्लड वेसल्स दे कैन डिटेरियोरेट। So that's all about this topic.